Good evening. Welcome to yet another talk in the Explore series. With Explore, we bring to you famous personalities whose thoughts can be the game changer. I am Archana Mantri, and today we have with us Justice R.C. Lahoti, Justice Ramesh Chandra Lahoti, former Chief Justice of India. He held the top judicial office from June 2004 to November 2005 and has delivered many landmark judgments during the tenure. But more than his intelligence, grit, and wisdom, he is known in the judicial circles as a man of values. He comes with the most humble background, but it inherited a strong value system from his parents. Started his career as a lawyer in the district court and swiftly rose to the top office. He proved to never have compromised on any of his values and principles while living his life and discharging his duties. He is a philanthropist and a strong believer in Indian values and culture. He opines, if every parent learns, practices, and passes on Indian values to his or her children, we can definitely build a better world. We are living in exploding times, and if our values perish from our lives, the society will be nothing but a set of walking bodies without souls. His lordship is an avid reader and has a vast library of his own at his residence, full of choicest books, not only related to law, but with wide subjects ranging from history, spirituality, religion, philosophy, science, and fiction. Welcome, Justice Lahoti, to this exclusive session on Indian values and culture. Namaskar. The audience here is inquisitive, and we have many questions, and the first one goes thus. The humanity is passing through difficult times, Justice Lahoti. Do you think there is relevance of discussing the subject of Indian values and culture in such times? Over to you, Lahoti ji. Yes. Good evening, everybody. I would begin with complimenting and expressing my gratitude to Chitkara University and its management. As I know, Chitkaras are men of values. They believe that in critical times, the values are our savior. Let me share a live anecdote with you, which I really love and narrate as many times as I can. Professor Devashish Chatterjee of Indian Institute of Management, Lucknow, when he was professor, later on director of Kozhikode Institute, written a beautiful book, Break Free. His erstwhile student and alumni, Manjunath, got a job, came to see the professor and to seek his blessings. The professor asked with a smile, "Dear son, how is life?" The student answered with a smile, "Sir, I am earning well my livelihood and I am living my life." The teacher asked again, but this time no smile, but seriousness. "Manjunath, if livelihood is for life, what is life for?" Manjunath answered, "Sir, if livelihood is for life, the life is for the motherland, for my country, for my nation." This dialogue between the teacher and the student leads to another more pertinent question. What is the purpose of life? If I were to ask this question to you and solicit answer to this question, I know that everybody would give a different answer. But I know the idea of the audience which I have, all the answers can be summed up into one. What is the purpose of life? Answer: the purpose of life is to live a life of purpose. The significance of values is that the values help us
in identifying the purpose of life. My friends, blessed are those who have a purpose of life, who have been able to identify a purpose of life and dedicated themselves with their values in achieving the goal of life. Now, the question arises that what is that which makes the life worth living and which enables a person to achieve the purpose of life as determined by him? And not only determined by him, but what are those factors which go into determining the purpose of life? I am reminded of a beautiful Urdu couplet. It says कि जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं है, जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं है, इसलिए अब कोई भी कद आदम कद नहीं है. We are losing our greatness not because we are anything less than others, but we don't have the purpose of life. All great men of the world of India had a purpose of life. They achieved the purpose of life, and that's why they have gone, but their memories have not gone, their teachings have not gone, and we still remember them. Beautifully said, sir. The purpose of life should be to live a life of purpose. I have another question coming in. What do you think are values? Are they different from ethics, morality, or is it simply being good? Is there anything special about Indian values, Bharatiya Mulya, जिसको हम कहते हैं, as distinguished from universal values? Would you like to throw some light on this, sir? Indian values, universal values. Values, a word of 6 letters, is a very potent word. The whole philosophy centers around this small word of 6 letters, values. Values are not just ethics, morality, or simply being good. Values have a deeper sense. Values are more important than valuables. Valuables come and go, but values remain. Let me attempt a definition of values. Values are the enduring beliefs of righteousness, goodness, or inherent desirability. Values are the enduring beliefs of righteousness, goodness, and inherent desirability. These are the principles which are shared by the members of one culture to make choices about what is good and what is bad, what is desirable and what is undesirable. Values contribute to developing philosophy of life, including our aims and ideals, which determine the way we think, behave, or conduct ourselves. Values are just like our fingerprints. No two fingerprints are the same, but you leave your fingerprints wherever you go and whatever you touch. Dalai Lama has said, open your arms to change, but not let your value change. The values cannot change. Times may change, place may change, but a person, a community which has the values does not change. Well, this is the definition in English, but more beautiful definition is to be found in Hindi. साहित्य श्रोमणी डॉक्टर धर्मपाल मैनी, उनने अनेक विद्वानों से परामर्श कर मानव मूल्यों की परिभाषा इस प्रकार से की है. उन्होंने कहा है कि मानव मूल्य उसे कहते हैं जिसका ध्येय बृहत्तर लोक कल्याण हो.
और जिससे व्यक्ति का उदात्तीकरण होता हो. The benefit of large section of society, the benefit of the entire humanity, and the rising of the height of the person by adopting the values, imbibing them into his character. वे सभी सद्गुण, आदर्श, सिद्धांत, नीतियां, परंपराएं और आदर्श जो इन दो कसौटियों पर खरे उतरते हों, वे मानव मूल्य की परिभाषा में आते हैं. Now, in this context, let me share one more thought with you. There are three terms: character, culture, and civilization. Character is something which belongs to an individual, the innermost of a person. I would say that a man who has learned to live by values and not to compromise with them is a man of character. Then culture. Culture consists of those values handed down by traditions and conventions which are common to a community or to a group of people. Different communities may have different characteristic qualities or values belonging to that group by which that community is known and distinguished from another community. These are the qualities, these are the values by which India can claim to distinguish itself from the rest of the world. Then there is civilization. Civilization is universal to human beings. Wherever they may be, it is the external physical or worldly aspect of the progress and prosperity achieved by man as a whole with the assistance of the science, technology, and advancement in those fields. With the passage of time, civilization keeps on changing, but the core cultural values do not change. With the advancements in the field of science and technology, the parameters of civilization change. The man enjoys worldly pleasures and seems happy more and more, at least it looks like that. But by achieving worldly progress and prosperity, a person can say that he is living a successful life, safal jivan. But living by values, a man of character would say that he is living a meaningful life, sarthak jivan. This is the difference between safal and sarthak jivan. A successful man is not necessarily living a meaningful life, but a person who is living a meaningful life achieves what he wishes to do, though in the worldly sense, he may not be called a successful person. Well, by worldly means, a person can, and why this distinction is important? By worldly means, a person can earn prestige, pratishtha, in the eyes of society. A man of character may or may not have worldly respect, but he will have pleasure, प्रसन्नता. महंगे बड़े घर में रहने वाले व्यक्ति महंगे वस्त्र पहनकर लग्जरी कार में जब बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर चमक होती है. चरित्रवान व्यक्ति के पास भौतिक संपदा, धन और संपत्ति न भी हो, किंतु उसके चेहरे पर तेज होता है, एक आभा होती है. केवल संपन्नता अभिमान की जनक है. चरित्रवान व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है. मैम, you have asked me to say something about Indian values. Yes. I have told you what are values, but within the values, as I told little before, Indian values are poles apart from the values of the whole world. Earlier, we used to talk about Eastern culture and Western culture, but a large section of East
has become Western in the way it lives, behaves, and thinks. But India continues to be India. There are values which belong to India, that is us. They make us different from the entire world. They are to be found in our most ancient literature, written by the rishis and maharshis thousands of years before, such as Ved, Puran, Upanishad, Smriti, and so on. अनवरत तप और साधना को साधन बनाकर हमारे पूर्वजों ने अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और अनुभूति की ऐसी मानसिक शक्तियां विकसित कर ली थी कि जहां आज की तकनीक और विज्ञान पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उन आविष्कारों से साक्षात्कार हमारे ऋषि और महर्षियों ने पद्मासन में बैठे हुए ही कर लिया था। उन्हीं ने वह साहित्य रचा है जिनसे भारतवर्ष के मानव मूल्यों ने जन्म लिया है। यदि कोई मुझसे ये कहे कि क्या आप एक वाक्य में, एक सूत्र में भारतवर्ष के मानव मूल्यों को समाहित कर सकते हैं, समेट सकते हैं, तो मैं उस श्लोक को कहूंगा कि सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आपने ये श्लोक अक्सर सुना होगा, अक्सर पढ़ा भी होगा। ये श्लोक कहां से आया? इस श्लोक को यदि हम 4 हिस्सों में विभाजित करें तो इसका पहला हिस्सा अथर्ववेद से आया और शेष 3 अंश इसके गरुड़ पुराण से आए हैं। गरुड़ पुराण के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठक गरुड़ पुराण की पुस्तक को सर्वे भवन्तु सुखिनः समर्पित करता है। तब वो प्रार्थना करता है, मे ऑल बी हैप्पी, may all be free from ailments or diseases. Not that let me be happy and let me be free from all ailments and diseases. भारत के मूल्य ये कहते हैं, may all be happy, may all be free from ailments or diseases, may all experience good things, may no one ever come to grief. This is the core Indian value which distinguishes the Indian culture from the rest of the world, especially the Western culture. In Western culture, the focus is on I, the individual. I must live well. I must enjoy my life. I must have all the pleasures. But the Indian culture focuses not on I, but on we. That is all. Indian culture, Indian values believe if all are happy, if the entire community is happy, then I too would be happy. That's the approach, that's the Indian values. Sarve bhavantu sukhina, ये जो सूत्र है, it is such a potent and powerful expression that with the lapse of time, this has magnified itself into 7 dimensions. अब देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिना ने कैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया इंडियन कोर वैल्यूज में। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, द होल यूनिवर्स इज वन। अतिथि देवो भव, our guest is akin to God. God coming to our place if our guest comes. प्रकृति प्रेम, प्रकृति की पूजा, केवल भारतवर्ष है संपूर्ण विश्व में। आप विचार कीजिए कभी, हम पशु की भी पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, हम शेर की पूजा करते हैं, हम भालू की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं। हर एक पशु किसी न किसी देवी या देवता का वाहन है और इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हमारे भगवान शिव ने
सर्प को गले में अलंकार के रूप में धारण किया, तो हम सर्प की भी पूजा करते हैं और नाग पंचमी पर सर्प को भी दूध पिलाते हैं। ऐसा विलक्षण कलेक्शन ऑफ वैल्यूज दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और कोविड-19 के संदर्भ में यदि आप देखें तो चाइना के लोग यदि प्रकृति के पूजक रहे होते, पशुओं से प्रेम करते और पशुओं को उस तरह जीवित न खाते जिस तरह वो खाते हैं, जिस तरह वो सूप बनाते हैं जिसकी वजह से कहते हैं कोविड फैला, तो आज विश्व भर में ये बीमारी न फैली होती। और इसीलिए क्योंकि हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, हम पशु में भी उसी आत्मा का, परमात्मा की अंश का अनुभव करते हैं जैसा हम अपने आप में करते हैं। इसीलिए मांसाहार के प्रति हमारी अरुचि है। कोविड के बाद मैंने बहुत से मित्र हैं जो पहले मांसाहार किया करते थे, वो कहते थे अब हमने मांसाहार त्याग कर दिया है। आप पुरानी बीमारियों को देखें, सार्स आया, HIV एड्स आया, फ्लू आया, प्लेग आया, ये सारे पशुओं से मनुष्य के शरीर में आए हैं। मनुष्य ने पशुओं का भक्षण किया और तब वो मनुष्य के शरीर में वो वायरस का प्रवेश हुआ और तब वो प्रसारित हुआ। इससे प्रकृति का प्रेम, प्रकृति की पूजा। 4, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम ये मानते हैं कि इस जन्म में हम जैसा भला और बुरा करेंगे उसी के अनुसार हमको हमारा आगामी जन्म मिलेगा। हम मोक्ष चाहते हैं, फाइनल लिबरेशन, साल्वेशन, और इसलिए हम मूल्यों के साथ जीना चाहते हैं ताकि हमें मोक्ष मिले। आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, योग और आयुर्वेद। आज भारतवर्ष ने संपूर्ण विश्व को योग दिया है। बाबा रामदेव ने योग का प्रसार प्रचार किया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हस्तक्षेप से यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया। योग इम्यूनिटी डेवलप करता है और बाबा रामदेव का दावा है कि यदि आपको कोविड से लड़ना है, बचना है, तो योग करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। और अंतिम, संयम, अनुशासन, सेल्फ रेस्ट्रेंट, ये 7 लक्षण वसुधैव कुटुंबकम के एक कोर वैल्यू से प्रसारित होते हैं। हाल ही में मैंने एक लेख पढ़ा तो उसमें लिखा है, एक बड़ी देखिए सुंदर, उसने बड़ी अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया। एक विद्वान लिखता है कि 7 नहीं, हमारी वैल्यूज 11 हैं। मैंने पढ़ा क्या क्या 11 वैल्यूज हैं। अब देखिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। कोर वैल्यूज: सत्य, सदाचार, सत्संग, संयम, साधना, सेवा, संतोष, सहयोग, संकल्प, समर्पण, स्वाध्याय। सुखिन भवन्तु। यदि हम ये 11 सिद्धांतों का पालन करते हैं तो सर्वे सुखिन भवन्तु की मंजिल हमसे दूर नहीं रह सकती। इतना ही मुझे जी। हाँ जी। It was definitely. I didn't want to disturb you and wanted to listen more and more on Indian values and universal values. But the topic for today was how we can imbibe the Indian values and culture in our work and life. So today, every person, traditionally men and now women also, they are working. And they have to spend at least 1/3 of their time at workplace, 1/3 of time at home, rest 1/3 in daily chores, including sleeping hours. So how Yes. can the life be value based? You told about 7 values or 11 values, whatever we can take. So how can the life be value based at all places? Many of the audience also are asking this question. And does it help
living, value-based living, can it help to strike a balance between different situations, workplace, at home, or at home also? Is it possible? I think now we have come to a very relevant issue. Apart from discussing pure philosophy, this is a very practical question and concerns our day-to-day life. Let us analyze ourselves. What does every man, whether a male or a female, what does he or she wish? One, every person desires to live. Two, every person desires to live long. Three, every person desires to live long happily. केवल जीवन जीना सार्थक जीवन नहीं है, वो चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, सुदीर्घ जीवन जिए, पर ये जीवन हम प्रसन्नता पूर्वक जिए, ऐसा दुख का जीवन ना हो कि हमारे जीवन हमारे लिए अभिशाप बन जाए। आपने बहुत ठीक कहा कि हर व्यक्ति का जीवन जो वर्किंग है, वेदर पुरुष हों महिलाएं हों, उनका 1/3 समय ऑफिस में जाता है, 1/3 घर में और 1/3 उनके प्रतिदिन के नित्य क्रियाकर्म और सोने में जाता है। तो चलिए हम जरा वही वसुधैव कुटुंबकम और सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, इसको हम जरा ऑफिस, इससे प्रसूत होने वाले सिद्धांतों को हम ऑफिस और घर दोनों जगह लगाकर दे रहे हैं। और इसी से सर्वे सुखन्ति भवना, सर्वे सर्वे सुखिन भवन्तु। अब देखिए ऑफिस के 7 सूत्र मैं बताना चाहता हूं कि जिसमें ऑफिस में आप प्रसन्नता पूर्वक अपना समय बिता सकते हैं। 1, be respectable, respect each other and respect each other's privacy. 2, be considerate, accommodate each other. 3, be tolerant. After all, to err is human. Unity, think and work like a team. Reciprocity, treat others in the same way as you would like to be treated by others. Transparency, be transparent. Never speak or do anything to anyone behind his back which you will not be able to say or do in his presence. This is the most important principle. I have seen several persons losing their job and being fired because they did not follow this principle. 7th, consistency. Your every decision should be rational and with reasons, never be unpredictable. So, respectability, considerate, tolerant, unity, reciprocity, transparency and consistency. ये 7 सूत्र हैं जिनका निर्वाह यदि आप करें तो अपने ऑफिस में आप चाहे कर्मचारी हों चाहे बॉस किसी पद पर हों, आप एक सफल और सक्षम कर्मचारी अधिकारी माने जाएंगे। अब परिवार पर आइए। देखिए, जहां ऑफिस का जो आधार है, द फाउंडेशन ऑफ ऑफिस इज हार्ड वर्क, परफॉर्मेंस एंड परफेक्शन। In family, the foundation of family are emotions, sentiments, and soft feelings. In other words, the foundation of family is mutual love and affection. The same principle, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सुखिना भवन्तु, इसको परिवार के संदर्भ में हम कैसे लागू करेंगे? वही 7 सूत्र परिवार के संदर्भ में। 1,
बी ऑनेस्ट टू ईच अदर। कभी परिवार में एक व्यक्ति दूसरे से असत्य भाषण न करे, सत्य बोले। 2, फॉरगिव एंड फॉरगेट फॉर द फॉल्ट्स एंड एक्सीडेंटल लॉसेस। मैंने परिवारों में देखा, एक कप फूट गया, एक कप फूटने के पर बच्चे की पिटाई हो जाती है। छोटे भाई ने कप तोड़ दिया तो बड़े भाई इतना नाराज हो जाता है कि 3-3 दिन तक छोटे भाई से बोलता नहीं है। नो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। 3, understand and appreciate each other. 4, do the things together, share and care. यदि एक व्यक्ति भोजन परोस रहा है, एक व्यक्ति भोजन की प्लेट्स लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति भोजन परोस रहा है, एक खाने की व्यवस्था कर रहा है, दूसरा पानी की व्यवस्था कर रहा है, शेयर एंड केयर। 5, रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड ब्लेस यंगर्स। अपने से बड़ों का आदर करो और अपने छोटों को आशीर्वाद दो। 6, कम्युनिकेट, लिसन टू द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ यंगस्टर्स। हम कई बार बच्चों को समझ नहीं पाते और बच्चों का दोष निकालते हैं, जबकि हमको पता ही नहीं कि उस बच्चे की समस्याएं क्या है। और याद रखिए, समटाइम्स द चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, एट टाइम्स they may also prove to be more wise than what you think they are. And 7, never let your kids see you disagree, much less fighting with each other. जो पति और पत्नी बच्चों के सामने झगड़ते हैं, वे भाई बहन एक दूसरे से झगड़े बिना नहीं रह सकते। इसलिए बच्चों के सामने, और याद रखिए, बच्चे कहने से कम सीखते हैं, देखकर ज्यादा सीखते हैं। इसलिए never let your kids see you disagree, much less finding fault with each other. अब देखिए, ये तो बात हुई सिद्धांतों की कि ऑफिस के लिए क्या सिद्धांत, घर के लिए क्या सिद्धांत। पर मैंने कुछ चिंतन किया, और जो मैं चाहता हूं कि परिवार में इन मूल्यों का प्रवेश कैसे हो सकता है, तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको देना चाहता हूं जो मेरे अपने अनुभव पर आधारित हैं और विशुद्ध मेरा अपना सोच है। बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं और कृपया इस पर आप ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इनका पालन करें। नंबर 1, राइज अर्ली। सूरज उठे उसके साथ उठिए। सूरज भी उठ करके काम पर लग जाता है। सूरज के जगने के बाद हमको सोने का कोई अधिकार नहीं है। राइज अर्ली एंड फाइंड टाइम फॉर मॉर्निंग प्रेयर, meditation, pranayam and yoga. 1. 2. Draw up a schedule of the work for the day. Note down things to do, calls to make and persons to visit. मेरा अनुभव यह है कि मेरी नोटबुक में, मेरी आज के शेड्यूल में जो काम लिख गया वो हो गया, और जो नहीं लिखा गया वो नहीं हुआ, वो पेंडिंग रह जाता है। I make it a rule. Either in the evening before going to bed, I drop the schedule for the next day, or next early morning, that is the first job which I do, draw up the schedule for the day. तीसरी बात, आप इसको एकाएक मानेंगे नहीं, पर मैं कहता हूं आप मेरी मानिए। There should be only one TV in the house, and that too in the living area. Only such programs shall be seen as the entire family can sit together and view. Avoid viewing serials and soap operas. Strictly no TV in bedroom. बेडरूम का टीवी परिवार की एकता को नष्ट करता है। दूसरी बात, बच्चों को ऐसे कार्यक्रम देखने की छूट देता है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। चौथा, और एक स्टेप आगे जाता हूं, कदाचित कोई आपसे ये बात ना कहे पर मैं कह रहा हूं आपसे, करके देखिए। मेक ए रूल दैट नो लैपटॉप एंड नो मोबाइल shall be carried into bedroom, excepting by the leader of the house, who can have the cell phone to attend to any call during night or any emergency call.
नियम बनाइए कि जहां चार्जर लगा हुआ लिविंग एरिया में, रात को सोने जाने के पहले बड़े से लेकर छोटा तक हर व्यक्ति अपना मोबाइल उस चार्जर में लगा देगा, अपने बेडरूम में लेकर के नहीं जाएगा, ना तो लैपटॉप और ना ही मोबाइल। ये बात आज का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मेरा अनुरोध है कि इस पर आप कुछ चिंतन कीजिए। ये बात बहुत दूरगामी प्रभाव रखने वाली है। हम नहीं जानते टीवी, लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से हमारा कितना जहर हमारे चिंतन में परोसा जा रहा है, इसकी कल्पना हमें नहीं है। और आज समाज में जो अनेक बुराइयां व्याप्त हैं, इसके कारण यही है। 5. News on TV to be seen only at one time, and that too not exceeding 15 minutes. 24 घंटे चैनल पर आज किसी झोपड़ी में आग लग गई, आप तो देख के भूल जाएंगे, पर टीवी का चैनल 24 घंटे उस झोपड़ी में आग लगाता रहता है, आपको चैन नहीं लेने देता। कहीं झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, अपराध हो गया, 24 घंटे आपको याद दिलाएगा, आपके मन में बुरी तरह भय व्याप्त कर देगा। तो न्यूज केवल 15 मिनट, वो भी दिन में एक बार। अलाउ परमिट एंट्री ऑफ ओनली गुड बुक्स इन योर हाउस, नो अनडिजायरेबल बुक और मैगजीन। मैं खुलकर कहता हूं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत समय से पढ़ता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे यहाँ आता है, हॉकर जैसी टाइम्स ऑफ इंडिया दिखकर जाता है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया साथ एक सप्लीमेंट आता है, दिल्ली टाइम्स, चंडीगढ़ टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स। उस पर ऐसे चित्र छपे होते हैं कि वो युवती या बाला वैसे वस्त्र पहन करके मेरे सामने जाए तो मैं आंखें झुकाऊंगा और दोनों हाथ जोड़कर उससे नमस्कार कर लूंगा कि आप कब जाएंगी। मेरे यहाँ नियम है, वो सप्लीमेंट आते ही डस्टबिन में डाल दिया जाता है और समाचार पत्र केवल घर के अंदर आता है। नो न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग आवर्स, यू मे रीड सम न्यूज बट ओनली इन आफ्टरनून और इवनिंग। एक समय था जब अखबार के साथ चाय पीने से चाय का जायका बढ़ जाता था। आज अखबार पढ़ते हुए चाय पीते हैं तो चाय का स्वाद खराब हो जाता है। फोटो, पिक्चर्स, कैलेंडर ऑन दी वॉल्स, दीवार पर जो चित्र टांगते हैं, वो चित्र टांगिए जिनमें कोई ना कोई मैसेज हो, या प्रकृति के प्रेम का दर्शन, प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन उसमें होता हो। कोई ऐसा चित्र मत टांगिए जो हमारी किसी विकृति या वासना का द्योतक हो। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, मैं किसी के घर में जाता हूं तो ये देखता हूं कि उसके घर में किताबें कौन सी रखी हैं और दीवार पर चित्र कौन से टंगे हैं। मैं कह सकता हूं इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। इसलिए कोई चित्र दीवार पर ऐसा जो वो चित्र टांगिए दीवार पर जो बोलता हो, जिसमें कोई चरित्र बोलता हो, जिसमें कोई संदेश प्रतिनिधित होता हो। मित्रों, मेरा आग्रह है कि मेरे इन 7 सुझावों पर केवल 7 दिन के लिए प्रयोग कर लीजिए। आपको अच्छा लगे आगे चलाइए, यदि आपको लगे कि नहीं मैंने जो कहा उचित नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। पर मुझे, यदि आपने मुझे आज आमंत्रित किया है चितकारा यूनिवर्सिटी के सौजन्य से, तो मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं इतनी बात आपसे कहूं और आपसे आग्रह करूं कि आप मेरी इस बात को, मेरी प्रार्थना को, ये मैं बात कह नहीं रहा हूं, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़कर, आप इसकर अपने हित में अनुकरण करके देखिए। मैंने तो बड़ी विनोद की बात पढ़ी है जगह कि सारे उद्योग बंद कर दो तो प्रकृति का प्रदूषण बंद हो जाएगा, और सारे टीवी चैनल बंद कर दो तो सांस्कृतिक प्रदूषण खत्म हो जाएगा। बात विनोद की है पर इसमें कुछ दम है। तो आज मेरे सभी श्रोताओं से मेरा बहुत ही करबद्ध अनुरोध है कि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, और आपने यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार की तो मैं मानूंगा कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है।
That was true invasion into the thoughts of the audiences, and I'm sure audience is going to take this advice and work forward. You have requested for 7 days, but I'm sure they are going to look at the results. They are going to get positive results and going to follow. They're going to follow it for the lifetime. So many of the things which you have said, sir, they are resounding with the values and the thoughts of our founders, Dr. Ashok K. Chitkara and Dr. Madhu Chitkara. And this question, the next question is coming from one of our founders, Dr. Ashok Chitkara. He's saying that many of us think compromising with values is a must to reach the pinnacle of success. I know you would always differ. Can you please share some examples of well-known personalities who have hit the zenith of success by living by the values? If you can quote some examples, sir, that would help the audiences here. Certainly. मैं डॉक्टर चित्कारा को एक बात कहना चाहूंगा। जो हमारे मूल्य हैं, महात्मा गांधी ने हमारे मूल्यों को 3 शब्दों में परिभाषित किया: सत्य, अहिंसा और धर्म। सत्य, ट्रुथ, इसी से हमारे सारे मूल्य प्रतिध्वनित होते हैं और सत्य की विजय होती है। सत्य कभी पराजित नहीं होता, विजय देर से हो सकती है। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होऊंगा कि, और दलाई लामा ने भी कहा मेरी बातों तो मानिए, दलाई लामा की तो मानिए। सिद्धांतों से, मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, मिथाली राज का नाम आपने सुना होगा। ये एक लड़की है जो इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन है। एक बार मैंने उसका साक्षात्कार पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशित हुआ था। नोना वालिया नाम के एक प्रसिद्ध पत्रकार है, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था। उससे पूछा उन्होंने कि मिथाली, क्या आप अपने जीवन की सफलता के जिन सिद्धांतों को आप जीती हैं, क्या आप बांटना चाहेंगी? उसने कहा जरूर। 7 बातें उसने कही। उसने कहा, आई हैव ए स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड लाइफ, स्वानुशासन, सेल्फ रिस्ट्रेंट। 2, आई बिलीव दैट एवरी मॉर्निंग इज ए न्यू बिगिनिंग। 3, I believe in gearing up as the sun comes up. I wake up along with the sun and then keep busy for the whole day, which includes my daily practice and gym. 4, I am a spiritual person and utilize my morning time for awakening my spirituality to make my inner core strong. It is this strength that makes it possible for me to face all odds in life. 5, my parents and their blessings are my core strength. 6, I believe in working for happiness. In all my activities, I maintain equanimity, which comes from calmness. And 7th, very important, I read something inspirational every morning, even if it is of just 2 lines. मेरे दिन की शुरुआत की उत्तम साहित्य पढ़ने से होती है। समय का मैं 2 लाइन पढ़ती हूँ, पर पढ़ूंगी जरूर। अब ये तो मैंने आपको मिथाली राज का एग्जाम्पल दिया। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। थॉमस सी कार्ले ने एक पुस्तक लिखी, चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। 177 करोड़पतियों का उसने 5 वर्ष तक अध्ययन किया और अध्ययन करके उनके करोड़पति बनने के जो सूत्र निकाले। यानी ये करोड़पति जुआ खेलकर एक कैसीनो चला करके नहीं बने, ये परिश्रम से करोड़पति बने हैं और उन्होंने अपने सूत्र बताए। अब आप देखिए, एक सेकंड में आप उनके सूत्र सुन लीजिए। 1, वो अपनी पूरी कमाई खर्च नहीं करते, कुछ बचाते हैं। एक बार में एक काम को लक्ष्य बनाते हैं। हफ्ते में औसतन 58 घंटे काम करते हैं। रोजाना 1 घंटे से भी कम टीवी देखते हैं। सामान्य घरों में रहते हैं, अधिकांश के पास पुरानी गाड़ियां हैं।
वे टालम टोल नहीं करते, तुरंत निर्णय लेते हैं। टालम टोल करने वाला व्यक्ति अपनी कंपनी के मैनेजमेंट और साथी कर्मियों का भरोसा खो देता है। काम की सूची बनाते हैं और उनको पूरा करने की डेडलाइन तय करते हैं। अमीर बनने के दो रास्ते हैं। पहला, कमाई से कम खर्च कीजिए। दूसरा, खर्च से ज्यादा कमाइए। ज्यादा कमाने का विकल्प सबके पास नहीं होता, इसलिए अपने खर्च को कमाई से कम रखना ही बेहतर तरीका है। सुबह जल्दी उठते हैं, काम शुरू करने से कम 3 घंटा पहले। वो क्रोध नहीं करते, कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, जंक फूड नहीं खाते। 117 करोड़पति 5 वर्ष तक इंटरव्यू, जंक फूड नहीं खाते, फास्ट फूड रेस्तरां में नहीं जाते, रोजाना कम से कम 7 घंटे सोते हैं, सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू का सेवन नहीं करते। 117 करोड़पति सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू का सेवन नहीं करते, और इनके करोड़पति बनने के रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है। बस एक अंतिम बात में समापन कर दूं आपसे। मैंने आपको डूज बताए, जरा डोंट्स देख लीजिए। एक व्यक्ति ने ऐसे ही रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद उसने कहा क्रिएटिव पर्सन, उसने सक्सेसफुल पर्सन के बजाय कहा क्रिएटिव पर्सन, कि किन्हें क्रिएटिव पर्सन कहते हैं। तो उसने बताया जो प्रोडक्टिव पर्सन होते हैं, क्रिएटिव पर्सन, वो कौन कौन से काम नहीं करते। एक, वो कभी जरूरत से ज्यादा इंतजार नहीं करते। अगर काम समय पर नहीं होता तो छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। कभी एक दूसरे की चुगली नहीं करते। कभी अपने को सही साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं ऐसा करने से केवल समय नष्ट होगा। अपने नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं करते, जड़ों से जुड़े रहते हैं। डॉक्टर चित्कारा ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर डोंट्स में सर्वे करके दिया गया है। नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देते, हमेशा जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखते हैं। छोटी जीत को नजरअंदाज नहीं करते, क्यों? कि उनकी सोच कुछ बड़ा करने की होती है। हर बात के लिए हर किसी से सहमत नहीं होते, और हर ऐसी बात का समर्थन नहीं करते जिसमें सुधार की गुंजाइश होती है। ये डोंट्स हैं संसार के मोस्ट क्रिएटिव पर्संस के। मेरे ख्याल है कि आपके दर्शकों की ये जिज्ञासा समाप्त होगी। कुछ जो उदाहरण मुझे ध्यान में आए वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। Yes. And there are on the Facebook Live, there are many questions pouring in. There are a whole lot of them, although I'll not be able to take many of them. But before I switch to the audience's question, I have the last one, which is also now asked by many people who are listening. So as much as I know Justice Lauti, I know about you. You come from an humble background, but you have touched the highest position of Indian judiciary. Based on your experiences, I request you to share with our audience some secrets, some practical tips to follow in workplace and in family. Coming back to our topic, some practical tips, some secrets, if you can share. देखिए, आपने प्रश्न पूछा है तो जवाब मैं उसका बहुत ईमानदारी से दूंगा। देखिए, पहली बात तो मेरी कुछ स्वीकारोक्ति, कन्फेशंस। आई एम नॉट ए वेरी लर्नड मैन, फर्स्ट। टू, I did not have very good education. I never went to Stanford or University of California. I never went to foreign for education. All the schools and colleges were very humble, normal schools and colleges. Third, I am not a person who was born with a golden spoon in his mouth. My parents were of very modest means, and I lived like a very ordinary, humble human being. परंतु मैं जो आगे बढ़ा हूं, यदि आपने पूछा है तो मैं केवल 3 बातें कहना चाहता हूं। नंबर 1, फर्म फेथ इन गॉड। ईश्वर पर
मैसेज कर देना, आई टॉक सम टाइम लेटर। ईश्वर पर भरोसा, और इस पर मैं रामचरितमानस की चौपाई पढ़ना चाहूंगा कि तुलसी सीता राम कहूं दृढ़ राखूं विश्वास, सीताराम मेरे आराध्य देवता हैं। तुलसी सीता राम कहूं दृढ़ राखूं विश्वास, और कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। Firm faith in God. 2. Blessings of elders, especially the parents, and good wishes of friends and youngers, or you and your audience. Third, strive for excellence. Strive for excellence. Compete with yourself and not others. मैंने कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं की, कोई प्रतियोगिता नहीं की, बस एक सूत्र रखा, मैं जो कल था आज मुझे उससे बेहतर इंसान होना है, और जो मैं आज हूं इससे बेहतर मुझे कल होना है, आने वाले कल। तो मेरी प्रतिस्पर्धा, मेरा कंपटीशन सदैव मेरे से खुद से रहा है, मैंने कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं की। सो फर्म फेथ इन गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स, स्पेशली पेरेंट्स, and striving for excellence. Okay. These are the 3 secrets of my success, nothing more. Thank you for sharing those secrets. And now I am taking some questions from the audience. I'll not take the names because many of the audience have posted same types of questions, so I'm not taking any names. But a very simple, straight question. Since you come from judicial background, somebody has asked, and one of the audience has asked, do you really believe that everyone is equal before the law? Yes, at least on principle. This many people know that everyone is equal before the law, but the real principle is not everyone is equal before the law. The law is equals cannot be treated as unequals, and unequals cannot be treated as equals. I repeat, equals cannot be treated as unequals, no discrimination, and unequals cannot be treated as equals. जो साधन विहीन आदमी है उसे साधन संपन्न के बराबरी में नहीं रखा जा सकता न्यायदान के समय। इसलिए all are equals is very good, very attractive slogan, but the real principle is equals not unequals, unequals not equals. Okay. Thank you. The next question is, what is the role of parenting in developing these characteristics, as you have just defined, the value-based characteristics in their young children? What is the role of parenting? And any special message for the parents from your perspective? That's what the questioner is. मैं पेरेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी पेरेंट्स उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप कितने भी संपन्न हों, देखिए आपकी जमीन, आपका मकान, आपका बैंक बैलेंस, आपकी ज्वेलरी, आपका कीमती फाउंटेन पेंट, आपके गले की चेन, उंगली में पहनी अंगूठी, सब आप अपने वसीयतनामे में लिख सकते हैं कि मेरे बाद ये मेरे बेटों को मिल जाए, मेरे बाद ये बेटी को मिल जाए, मेरे बाद ये बहू को मिल जाए, ये बड़े बेटों को मिले, छोटे बेटों को मिले। पर एक चीज है जिसकी आप वसीयत नहीं कर सकते, और वो है संस्कार, वैल्यूज। आप वसीयतनामे में नहीं लिख सकते कि मेरे संस्कार मेरे बड़े बेटों को मिल जाए या मेरे छोटे बेटों को मिल जाए। वो तो आपको अपने बच्चों को जीते जी देना पड़ेगा। The most valuable intellectual property is the संस्कार, और इसमें पिता की बजाय माताओं की भूमिका अधिक है। जो माताएं मुझे आज सुन रही हैं, मैं उनसे क्षमा याचना करते हुए ये कहना चाहूंगा कि यदि किसी परिवार के बच्चों का आचरण वैसा है जो कि किसी सुपुत्र का नहीं होना चाहिए, तो उसकी पहली जिम्मेदारी माता की है। विद्यालय में तो बहुत बाद में जाता है वो। आज मैं सुबह साध्वी ऋतंबरा को सुन रहा था, वो कह रही थी कि विद्या और शिक्षा में अंतर है। विद्यार्थी स्कूल में शिक्षा लेने जाता है,
पर विद्या तो उसकी माता की गोद में जिस दिन बैठता है उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है। इसलिए माता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि अपने बच्चों को संस्कारित करे, और ये भूमिका केवल माता को अकेले नहीं, माता और पिता दोनों को मिलकर निभाना चाहिए। दोनों को परस्पर परिचय करना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे संस्कारित हों। एक आपको थोड़ा गंभीर विषय ना हो जाए, इसलिए एक हल्की फुल्की बात कहता हूँ। मेरे एक समय में ट्रक काव्य में बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। आपने देखा होगा ट्रकों के पीछे कुछ लिखा रहता है, तो मुझे शौक पैदा हुआ कि ट्रकों के पीछे जो लिखा रहता है इसका पढ़ा जाए और उसका कलेक्शन किया जाए। तो उस कलेक्शन में से बड़े विनोद की बात कहता हूं आपसे। एक ट्रक में लिखा था, ट्रक के पीछे, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए। वो आशीर्वाद दे रहा है, जो मुझे बुरी नजर से देख रहा है। आपने देखा हो ट्रक पे कभी मिल जाएगा आपको, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए और बड़े होकर तेरा खून पिए। सबसे बड़ा शाप यदि किसी को दिया जा सकता है वो ये कि उसके बच्चे बिगड़ जाएं, और यदि माता पिता खुद ही बच्चों को बिगाड़े तो क्या। इसलिए माता पिताओं को संस्कार बच्चों को अपने जीते जी दे देना चाहिए, तब जबकि बच्चे शैशव की अवस्था में हो। We have the next question. This is again related to society and law both. It is the children of a fractured marriage that suffer the most. Who is to be blamed? Our eroding values or our weak laws on divorce and lack of counseling? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि मैंने आपसे कहा है कि आदमी को ईमानदार होना चाहिए, तो मैं भी ईमानदारी से बात कहूंगा। विवाह के संबंध में, और जो आज विवाह की जो आज की समाज में वातावरण है, देखा जाए तो जो समाज का वातावरण है, जो कानून बने हैं और अनेक उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय आए हैं, उनके कारण विवाह की संस्था जिसका विकास सैकड़ों वर्षों में हुआ था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज टुडे स्टैंड्स डिमोलिश्ड। ये विषय बहुत लंबा है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है आज आपके श्रोताओं में फैकल्टी, स्टूडेंट्स और लोग भी शामिल हैं, किंतु यदि परिवार के सदस्यों के साथ कभी कोई चर्चा करना चाहें तो इस विषय पर आधा पौना घंटे की चर्चा करना चाहूंगा। ये बिल्कुल सही है कि जब परिवार टूटता है, पति पत्नी पृथक होते हैं, तो सबसे ज्यादा क्षति जिसकी होती है वह है बच्चों की। माता पिता के जीवित होते हुए भी बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इससे बड़ा बच्चों का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और वे माता पिता नहीं सोचते कि एक दूसरे की न सही, परंतु कम से कम बच्चों के लिए तो हम लोग निभाएं एक दूसरे को। इसलिए इसमें कोई शक नहीं, ये कानून की समस्या है, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, सोशल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, सोशल जस्टिस का सब्जेक्ट है, और सर बहुत विचार और गहन मंथन की आवश्यकता है। हम लोग जिस वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, हमें कुछ सोचना पड़ेगा, अन्यथा मैं आपको एक आगाह करना चाहता हूं कि विवाह की संस्था अब 5-10 वर्षों से अधिक भारतवर्ष में टिकने वाली नहीं है। इस पर बहुत गहनता और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। So we have another question. Indian society today is plagued with the disvalue of indiscipline. Is discipline not the bedrock of all values? Sir, how can we have as a society and nation get rid of this disvalue of indiscipline? I have said that all the three, the examples when you asked me, I referred Mithali Raj, 117 billionaires of the world, and then don'ts. They all say that each one of them, the discipline, self-restraint, is one of the values
which has been imbibed by everyone, by Mithali Raj, by those who have been successful, and by those who have been productive and creative. इसलिए अनुशासन तो चाहिए. अब ये अनुशासन कैसे आएगा? ये अनुशासन जब बच्चे का शैशव या बालक की उम्र होती है, तभी अनुशासन का पौधा उसके व्यक्तित्व में रोप दिया जाना चाहिए. वो जैसे जैसे बड़ा होगा, अनुशासन का पौधा बढ़ता जाएगा. अनुशासन से ही संयम उत्पन्न होता है. डिसिप्लिन लीड्स टू सेल्फ रेस्ट्रेंट. आज जो समाज में अनेक बुराइयां नजर आ रही हैं, अनेक अपराध घटित हो रहे हैं, विशेषकर युवा वर्ग में, उसका कारण डिसिप्लिन यानी अनुशासन और संयम का अभाव है. इसलिए अनुशासन एक प्रशिक्षण की बात है, एक मनुष्य के मस्तिष्क में बैठाने वाली बात है और बहुत कम उम्र में बैठा दी जाना चाहिए. जो बच्चे अनुशासित वातावरण में रहते हैं वे अनुशासन स्वयं ही सीख जाते हैं, किंतु जो बच्चे ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां अनुशासन का अभाव है, वे बच्चे अनुशासन नहीं सीख सकते. All right. And we will take one last question from audience because we are now just moving towards the close of this session, but we'll take one last question. So an audience is asking, as one climbs up the ladder in career, it becomes much more difficult to have not only a good work-family balance, but also continue to work with Indian values, which we are taught in our childhood. So basically, when you progress further, the life also becomes difficult, the work also becomes difficult. So how we maintain that balance, continue to maintain that balance as we progress in our careers? That's the question. Any tips? Yes. तप, साधना और त्याग, निरंतर प्रयास. पहली बात तो हम इस कोर वैल्यू को माने कि हमें सफल तो होना है पर सिद्धांतों से समझौता नहीं करना. एक. दूसरी बात, when the person crosses the limit of need and enters the arena of greed, many problem arise. अब एक आदमी किसी से आप पूछिए जो बेहद बेतहाशा कमाता है, उससे आप पूछिए कि भाई तू ये सब कमा क्यों रहा है? वो कहता है मैं प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहता हूं. तेरी इस कमाई के पीछे बुरी तरह लगने के कारण परिवार का वातावरण, परिवार में तनाव रहता है, परिवार की प्रसन्नता नष्ट हो चुकी है. You do not know what your family is doing. You do not know what your children are doing. Then why are you earning? Why for? Therefore, first, the man should feel convinced that he has to strike a balance between the family and the workplace. The balance has to be struck. 1. 2. One should not be sacrificed for the other. 2. 3. He has to manage his time effectively. I have personally seen, they are my friend, busiest persons, but having time for the family. This is their quality. They manage it, they carve it out, and they successfully do it. इसलिए प्रयत्न करने से ये हो सकता है. So Justice Lauti, we have listened to your captivating talk, your thoughts, your values, and the insights that you gave, the practical tips that you gave. But before we conclude today's session, I want you to give a parting message to our viewers. Madam Vice Chancellor, we are already running late by 5 minutes. हमारा 5:30 से 6:30 तक का था. 5 मिनट हम ऑलरेडी अधिक हो चुके हैं. यदि आप मुझे 5 मिनट और दें तो मैं अपनी बात समाप्त करूं. All yours, sir. All yours. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. And with apology to the audience for taking a little more time. देखिए, मैं थोड़े से बात कहता हूं. पहली बात, आप अपने बच्चों को संस्कृत सिखाइए और हो सके तो आप भी सीखिए.
संस्कृत वो चाबी है जो ज्ञान के अथाह कोश खजाने को आपके सामने खोल देगी। दुर्भाग्य से जो विदेशी शासन या जिसे हम गुलामी कहते हैं और एक विपरीत कल्चर का शासन जो हमारे ऊपर रहा, उसके कारण संस्कृत को एक धर्म की भाषा कहा जाने लगा है, जो बिल्कुल गलत है। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है और संस्कृत का जितना समृद्ध ज्ञान है उतना किसी अन्य भाषा में नहीं है। सभी भाषाएं अच्छी समृद्ध हैं, पर संस्कृत सबसे ज्यादा है। संस्कृत सीखिए, बच्चों को संस्कृत सिखाइए। संस्कार की बात मैं आपसे कह चुका हूं, बच्चों को जीवन काल में संस्कृत कीजिए। तीसरी बात, आप उपनिषद पढ़िए और बच्चों को उपनिषद पढ़ाइए। उपनिषद भी ज्ञान का भंडार है और बड़े रोचक तरीके से लिखे गए, डायलॉग फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर। जैसे आज आपने मुझे प्रश्न किए जिसके उत्तर देने में मुझे बड़ा एक फ्लो मुझे मिल गया। आपके हर प्रश्न का उत्तर देते समय मेरे विचार मन में आते गए। हमारे जितने उपनिषद हैं वो प्रश्नोत्तर में लिखे गए, बहुत रोचक है और ज्ञान का भंडार है। ये उपनिषद उपलब्ध हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, अन्य भाषाओं में भी। मैं आग्रह करूंगा कि प्रत्येक श्रोता को उपनिषद अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि कल ही आप कोई उपनिषद की पुस्तक लेकर के आइए और घर में ला करके उसे धीरे धीरे पढ़ना, उपनिषद शुरू कीजिए। इवन गीता को भी गीतोपनिषद कहा गया है। तो संस्कृत सीखिए, सिखाइए, संस्कार बच्चों को दीजिए और उपनिषद अवश्य पढ़िए। और अब अंतिम बात, केवल 2 मिनट और इस 2 मिनट में बहुत सशक्त संदेश है। मुझे लगता है कि हमारे श्रोता ध्यान से सुनेंगे। ये एक बड़ी जीवंत घटना है। एक ठेकेदार था, ठेके लेता था, मकान बनाता था। उसका एक बहुत कुशल कारीगर था। उसी कुशल कारीगर के कारण उसके बनाई हुई बिल्डिंग बहुत सुंदर तरीके की होती थी और जिसके लिए बनाता था उसको उस घर में रहने में आनंद आता था। एक दिन उस कारपेंटर ने ठेकेदार से कहा, मालिक, मैंने आपकी जीवन भर सेवा की है, अब मेरी आयु भी अनुमति नहीं देती। अब मैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, इसलिए अब आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मेरे काम से मुझे छोड़ दीजिए। ठेकेदार ने उसे समझाया, पर वो दृढ़ था। तो उसका अच्छा ठीक है, अब तुम काम नहीं करना चाहते न करो, पर मेरे एक काम और कर दो, एक आखिरी भवन और तुम बना दो मेरे कहने से। उस कारीगर ने ठेकेदार की बात मान ली, मकान बनाना शुरू कर दिया। पर ये दिख रहा था कि अब उसकी भावना उसके हाथों का साथ नहीं दे रही थी। ब्रिक बाय ब्रिक, सीमेंट बाय सीमेंट वो जो कर रहा था उसमें वो बात नहीं थी जो कि हुआ करती थी। खैर, भवन पूरा हुआ, खिड़की दरवाजे लग गए और एक दिन उस कारीगर ने ठेकेदार जाकर कहा, मालिक, मकान बन गया है, आप देख लीजिए। ठेकेदार गया, उसने मकान को देखा। समझने में उसे देर नहीं लगी कि इस कारीगर ने उस काबिलियत, उस अपनी कुशलता का प्रयोग इस मकान को बनाने में नहीं किया है जो हमेशा करने का आदी था। मकान तो बन चुका था, उसने पूरा घर घूम करके देखा, बाहर आया, उस कारीगर ने मकान को ताला लगाया, चाबी ठेकेदार को दी। ठेकेदार मुस्कुराया। उस ठेकेदार ने वो चाबी उसी कारीगर को दे दी और कहा कि तुमने मेरी जीवन भर सेवा की है, ये मेरा काम छोड़ने के पहले ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए उपहार है, आज से ये मकान तुम्हारा है। कारीगर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि यदि मुझे इस बात का रंच मात्र आभास होता कि जो मकान मैं बना रहा हूं इसमें मुझे ही रहना है, तो मैंने ये मकान बहुत कुशलता के साथ बनाया होता, क्योंकि रहना तो मुझे है। मित्रों, देवियों और सज्जन वृंद, हम उसी दुनिया में रहते हैं जैसी हम उसे बनाते हैं। यदि हम अपने आसपास एक अच्छी दुनिया बनाएंगे तो हम एक अच्छी दुनिया में रहेंगे, किंतु
अपने आसपास का वातावरण और अपने आसपास की दुनिया बनाने में यदि हम समझौता करते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए हमें और हमारे बच्चों को इसी दुनिया में रहना है, और यदि हमने उसको बनाने में कोई कमी की है तो हमें और हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को उसी में अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। इसलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि मूल्यों के साथ जीवन जिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः इस भावना के साथ अपने आसपास एक श्रेष्ठ समाज और अपने एक श्रेष्ठ संसार का निर्माण करे। यदि कोई व्यक्ति इस मूलभूत सिद्धांत को दृष्टिगत रखता है तो वो भी सुखी रहेगा और उसके आसपास के जो लोग हैं वे भी सुखी रहेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ चितकारा यूनिवर्सिटी और मैडम बीसी का कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, और उन सभी श्रोताओं को जिन्होंने मुझे सुना, बहुत धैर्यपूर्वक सुना, लगभग 1 घंटे से अधिक की चर्चा को। किंतु मैं वही कहूँगा कि साधु तो ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए और सार सार को गई रहे थोथा देई उड़ाए। आप सभी श्रोता विवेकशील हैं। मेरी इस 1 घंटे से अधिक की चर्चा में जो उत्तम लगा हो उसे रख लीजिए। आपको लगे कि जो बात त्याज्य है, स्वीकार्य करने योग्य नहीं है, उसे उड़ा दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार जस्टिस लाहौटी जी, बहुत अच्छा लगा। इतना मुझे लगता है इस टॉक को कई बार सुनना पड़ेगा इसमें से वो सार निकालने के लिए। आपके इतने अच्छे उद्बोधन के बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय धन्यवाद के। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फ्रॉम द होल चित्कारा fraternity and the audience and those also who are going to watch this later from their side also. It's a big thank you for sparing your valuable time and giving us insights into Indian values and imbibing them at Life at Work. Madam, I hope you'll be kind enough to convey my very gracious thanks to Chitkaras. Sure. I respect them very much and I know what they are. They are what you like. They are men of values, and in fact, they have inspired me to speak on values. So my heartfelt thanks to them. Please convey. Thank you. Thank you.